to print the factors of a given number. So before writing the program, I want you to understand what are the factors. In mathematics, we generally call factors, किन चीजों को factors कहते हैं? We'll understand that. Suppose taking a number called 6. 6 is a number and I want to find the factors. Factors are those numbers which exactly divide this number. यानी कि 6 को कौन कौन से नंबर्स हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं. तो थोड़ा सा कंप्यूटर भाषा में ही समझेंगे. मैथ्स में इफ यू से समथिंग अबाउट डिवीजन, जैसे मान लीजिए मैथ्स में डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर 6 है, यहाँ 1 है. 1 6 6 एंड द आंसर इज 0. ठीक है. व्हेन यू टॉक इन कंप्यूटर्स, राइट, हमें पता चल गया भाई, ठीक है, 0 आ गया. अब यही चीज अगर आप यहां देखें, 6 2 3 6, the answer is 0. Okay, one more example. देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है. 3 2 6 is equal to 0. हमने क्या कॉमन नोटिस किया कि इन तीनों ऑप्शंस में all three options have remainder as 0, remainder as 0, remainder as 0. Whereas for the first one, quotient was 6, the second one, quotient was 3, and for the third one, the quotient was 2. So what we found is that कि हम divisibility का टेस्ट अगर कंप्यूटर में करते हैं तो हम क्या फाइंड करेंगे? We'll find the remainder. That means we'll write 6 right here. 6 mod 1 अगर equal to 0 है, that's correct, and the value is 1. देखिए दो चीजें लिखी मैंने. ये परसेंटेज का साइन. कंप्यूटर्स में परसेंटेज का साइन मीन्स मॉड टू फाइंड द रिमाइंडर. अगर मैं लिखता हूं 6 mod 1, दैट मीन्स आई गेट द रिमाइंडर 0 व्हिच इज हियर. इफ आई राइट 6 mod 2, आई गेट द आंसर एज 0. ठीक है. और अगर कहीं मैंने लिख दिया होता 5 mod 2, तो आंसर क्या था? 1. आई गेट द रिमाइंडर. So this particular sign or the symbol is used to find the remainder. And second which is single equal to and double equal to. There are two symbols, one is single equal to and one is the double equal to. I'll make you write these differences in further classes, but अभी के लिए समझ लेते हैं इसको. देखिए कभी भी अगर हम किसी भी चीज को सिंगल इक्वल टू कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एन असाइनमेंट ऑपरेटर. दिस इज कॉल्ड एन असाइनमेंट ऑपरेटर. मैंने कहा a is equal to 6. That means I am initializing a with a value called 6. Whereas अगर मैं यहां लिखता हूं a is equal to 6, तो I am asking if they are equal or not. This is a relational operator, and relational operator always gives you a value true or false. This I have told you in the previous lecture. You can check it out about lecture about operators, right? In this is a double equal to is a conditional operator, and conditional operator always gives the value true or false. If value of a was 6, then it will give you answer true, otherwise it will give you an answer false, right? Now coming back to the topic which we were dealing with, it was that key to find the factors. अब हम factors की जब बात कर रहे हैं तो 6 mod 1 किया हमने, yes sir it is a factor, हमने इसको यहाँ पे print कर दिया. ठीक है, 1 इज अ फैक्टर. हम फैक्टर को किनारे लिखते जा रहे हैं. 6 mod 2 किया, आंसर क्या आया? दैट्स अगेन 0, दैट्स अगेन करेक्ट, 2 फैक्टर हो गया. 6 mod 3 किया, आंसर क्या आया? 0, अगेन 3 इज अ फैक्टर. 6 mod 4 अब is equal to 0? No, because 6 mod 4 is what? 2. 2 is equal to 0? No, it's not equal to 0. 2 की वैल्यू जो इसका रिजल्ट आने वाला है 6 mod 4 is 2, the remainder is 2. 4 1s are 4 and 2 is the remainder. It's not equal to 0, so it's not a factor. Then comes 6 mod 5. क्या ये equal to 0 है? No, because the remainder is going to come. 1 is equal to 0. No, it's not a factor. 6 mod 6 is equal to 0. That's correct, and 6 is a factor. तो हमने क्या नोटिस किया कि to write this program हमें क्या चाहिए? सबसे पहले व्हाट आर द नेसेसिटीज, हम उसके बारे में बात करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अ नंबर. एक वो नंबर जिसके हमें फैक्टर्स इनपुट कराने हैं. तो हमारा पहली चीज होगी, हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए जिसमें एक नंबर को हम स्टोर कर सकें. सेकेंडरी चीज, एक दूसरा वेरिएबल जिसकी वैल्यू
कंटिन्यूअसली बढ़ रही है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो हमें एक और वेरिएबल, हमने एक वेरिएबल x ले लिया, एक वेरिएबल i ले लिया, ठीक है, और उनके बीच में रिलेशन क्या है, मॉड का, एंड दैट इज इक्वल टू 0, ये फिक्स कर लिया हमने। अब देखिए हमें ध्यान क्या देना है, x हमने यूजर से इनपुट कराया, भाई जनरली यूजर बेस्ड प्रोग्राम बनाना है कि यूजर 10 को चेक करना चाहे, 5 का चेक करना चाहे, जिसके भी फैक्टर्स निकालना चाहे, इट्स अ कॉमन प्रोग्राम, यूजर विल गिव यू अ प्रोग्राम नंबर एंड यू विल फाइंड इट आउट। अब 1 की बात ये होगी, 1 का लूप कहां से चलेगा, इट विल बिगिन फ्रॉम 1, किसी भी चीज के फैक्टर्स की शुरुआत 1 से होती है, फिर 1 से लेके कहां तक फैक्टर्स हो सकते हैं, वो लास्ट खुद नंबर भी फैक्टर होगा। दैट मीन्स जो हमारा लूप चलता हुआ आ रहा है ऊपर से नीचे तक, हम जो सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं वो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 एंड सो ऑन। सो दैट मेक्स इट क्लियर कि i की वैल्यू विल रेंज फ्रॉम 1 टू द नंबर। हमारा काम पक्का हो गया, हमारे पास सारी डिटेल्स आ गई कि हमें जो प्रोग्राम बनाना है उसमें हमें एक नंबर इनपुट कराना है, दैट इज x, और हमें जो लूप एग्जीक्यूट कराना है वो i का होगा, और वो कहां से स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, कहां तक जाएगा, उस नंबर तक जाएगा, और कितने का इंक्रीमेंट होगा, वो 1 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो वी विल राइट, बहुत सिंपल से लिखते हैं, क्लास x y z, एक नॉर्मल हमने क्लास ले ली, हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैं कभी नहीं लिखता ESVN, आपको लिखना पड़ेगा, राइट। इनपुट के बहुत सारे तरीके हैं, स्कैनर से इनपुट कर सकते हैं, इंटीजर मतलब इंटीजर और पार्सेंट से इनपुट कर सकते हैं, दैट इज बफर, स्कैनर, बफर, और मेकिंग अ फंक्शन मेथड, दिस इज अ वेरी कॉमन वन। मैं इस चीज को रब करके प्रोग्राम को स्कैनर और बफर से भी लिख दूंगा, उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। Now int n, this is a number which is being input by, हमने वहां x लिया, आप कंफ्यूज ना हो तो हम x ले लेते हैं, राइट। हमने एक वेरिएबल ले लिया x, हमारे पास एक नंबर आ गया, इसमें नंबर क्या आ रहा है, सपोज करिए, दिमाग में ये बात रखते हुए बनाइए कि सपोज 6 आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, i, तो हमने यहां डिक्लेयर किया int i की वैल्यू क्या है, वो विल स्टार्ट इन द लूप। देखिए i एक वेरिएबल ले लिया जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। Now I'll start with the for loop because this is the most simplest loop. Int. Right, I'll take I'll start from 1. मैंने कहा था factors 1 से start होते हैं. I is less than equal to x. Last number तक जाना और हर बार i की वैल्यू को 1 से increment करना है. तो I can simply write i plus plus. It's again an increment operator. अगर आपको कोई डाउट हो i plus plus में तो please check the video of operators. I've explained it clear. वो क्या करता है? It's a post increment operator. Now, if condition. If के बारे में भी कोई डाउट है तो आप मेरे if के लेक्चर्स चेक कर सकते हैं, मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। If is a selection statement जहां पर x आ रहा है, अब मुझे चेक करना है x mod i क्या बराबर है 0 के। Yes, if this condition is true, जो हमारा, मैंने आपको फिर समझाया, this will give you a result. If the result is equal to 0, that means the remainder does not come. यहाँ आप साफ देख सकते हैं 6 mod 2 अगर equal to 0 है, the remainder is 0. If it is such, that means I is the factor, and I write SOPLN for the new line. I want to print my factors in every new line, and I close this, right? And I close this. ठीक है, मेरा ये काम पूरा हो गया. Now my for is being closed. मेरा class मतलब main function close हो गया and class close हो गया. After this, the program will execute. सोचिए x की वैल्यू 6 है, 1 to 6 का लूप है, देखिए 1 से 6 तक का लूप चल रहा है. x mod i, 6 mod i, ये कंडीशन लिखी हुई है, x mod i, 6 mod 1 true, I'll print 1. 6 mod 2, it's true, I'll print 2. 6 mod 3, it's true, I'll print 3. These two will not be printed because ये इनका रिजल्ट 0 नहीं है, but the loop will terminate. अच्छा, एक और चीज का जो आपको ध्यान देना है वो समझना है चाहिए, लूप कैसे वर्क करता है. It comes from here, goes here. ये कंडीशन अगर ट्रू है, then this is the body. ये आपकी बॉडी है. It will go here, execute all this. ये ट्रू है या फॉल्स है तभी इसके अंदर जाएगा, वरना it will come from here and यहां से ये लूप आगे बढ़ता है हमारी किसकी तरफ, इंक्रीमेंट की तरफ. इंक्रीमेंट होने के बाद इट कम्स बैक हियर, इसके पास आता है एंड इट गोज ऑन. ये प्रोसेस आपका तब तक चलता रहेगा
जब तक i की वैल्यू x से कम है या उसके बराबर है. Once value of i increases या becomes more, then this will stop. So this is a program to print the factors of a given number. अच्छा, मैंने भी आपसे ये भी कहा कि भाई कुछ लोगों को लग रहा हो अरे सर ये तो मेरे टाइप का नहीं है, हमारे स्कूल में डिफरेंट पढ़ाया जाता है, हम लोगों को दूसरे तरीके से पढ़ाया जाता है. तो जो दूसरा तरीका और तीसरा तरीका है मैं वो भी आपके सामने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इन द बोर्ड. यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन अंडरस्टैंड इट. देखिए सिंपल सा है. आप लिखते हो क्लास XYZ, ठीक है, एंड यू राइट PSVM, you put the space blank, you write scanner SC is equal to new scanner, bracket में system dot in, and a semicolon. This is the scanner statement. Now you take a variable int x comma I and you write SOP, that is system.out.println, a message, इसलिए double quotes, enter a number, right? And you write x is equal to SC dot next int. अब ये क्या चीज मैंने लिख दी, ये भी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, मैं वैसे बता रहा हूँ, दिस इज अ इनपुट स्टेटमेंट. बट हमने एक वीडियो इनपुट स्टेटमेंट्स के लिए भी रिकॉर्ड किया है जिसमें हमने सारे टाइप के वेरिएबल, सारे टाइप के डेटा मेंबर्स के लिए क्या क्या डिफरेंट स्टेटमेंट्स हमें यूज करना है वो भी मैंने मेंशन किया है फॉर बोथ बफर रीडर के लिए भी और स्कैनर के लिए भी. तो हमारा प्रोग्राम यहां तक बस डिफरेंट है बिकॉज इन्होंने इस पूरी चीज को शॉर्टन कर दिया एक फंक्शन में वैल्यू एक्स को इनपुट करा करके. यहां पर भी यूजर को वहीं से वैल्यू मिलेगी, यूजर ही देगा और यहां पर एक मैसेज लेके आएगा इंटर नंबर एंड दिस. उसके बाद पूरा प्रोग्राम फर्दर सेम, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू x, i प्लस प्लस, अगेन द सेम ब्रैकेट, इफ कंडीशन इफ x mod i इज इक्वल टू 0, देन SOP, I mean ln, because I want my result in new lines. ये कर दिया, I close this, I close this, and then I close both of them, and you get the same answer. यही चीज सेम आपको करनी है बफर रीडर में. you'll write here throws IO exception, that is for exception handling. you'll go again, scanner कीजिए, you'll write buffer reader BR is equal to new buffer reader bracket में new input stream reader system dot in, and this thing will be changed here. you'll write integer dot parse int, that's a parse function to convert a string value to an integer value, and br dot readline. Rest of the program will be same for all the three types. ठीक है, this particular thing I will not explain again and again. ठीक है, इस बात को आप कनेक्टिविटी के लिए दिमाग में रख लीजिए कि ये जो पूरा प्रोसेस है that is done here. I am solving this whole thing. यहाँ तक ये जो आपका blue mark है, this particular thing I am doing till here. This is the thing which is being shortened. Generally schools teach like this. तो ये पोर्शन हमने, और आगे चल के आप फंक्शंस भी बनाते हैं, तो दिस वन इज बीइंग सॉल्व्ड हियर. यानी ये पूरा काम हमने सिर्फ इस लाइन को लिख करके कर दिया, एंड दिस इज द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम दैट इज बीइंग डन. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ मिनट.